So today we'll see about two other sisters who are there in the life of Jesus, who are quite unknown. Their names are not mentioned, but Jesus came close to them and blessed them. और आज हम दो और महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में सीखेंगे जो बाइबल के अंदर है, जो यीशु मसीह से मिली थी. उनका नाम तो ज्यादा प्रचलित नहीं है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं है, पर यहाँ पर बाइबल में उनका जिक्र जरूर किया गया है. So the Lord Jesus cares for everybody who has need, and all those who cry to Him for help, the Lord always helps them and blesses them. और परमेश्वर को जो पुकारते हैं, परमेश्वर उनके करीब आ जाते हैं और उनको आशीषित करते हैं. And then He gives them the ability to strengthen them and makes them His own children. और वो इस लायक बनाते हैं कि वो उनकी संतान बन जाए. So we see here in the book of about Peter's mother-in-law. और यहाँ पर हम देखेंगे पतरस की सास के विषय में. So it says that here we'll see in the book of Mark. It's written in Matthew, Mark, and this, but it is written nicely. A few more verses detail is written in Mark, the book of Mark, chapter 1, verse 29 to 31. ब्रदर मत्ती में, मैथ्यू भी है, मार्क में हम लोग पढ़ेंगे. Same thing is mentioned in Matthew, Mark as well as Luke. अच्छा, ओके. मरकुस उसका chapter 1 verse 29 to 31. 29 से 31 वचन तक, पहला और 29 से 31 वचन तक. So it says, when Jesus had come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever. Immediately they spoke to him about her. And he came to her and raised her up, taking her by the hand. And the fever left her, and she waited on them. और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर पर गया. और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा. तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उसकी सेवा टहल करने लगी. So we see this very simple incident that happened in the life of Peter's mother-in-law. और हम देखते हैं कि बहुत ही साधारण सा एक घटना है जो घटती है जो पतरस है उसकी सास के जीवन में. Peter was a disciple of Jesus Christ, and they were in the temple and they were discussing the word of God. और पतरस जो था वो परमेश्वर का एक चेला था, और वो मंदिर में गए हुए थे. So after they came out of the synagogue, then Peter told Jesus, please come to our house, we can have food. और जब वो आराधनालय में गए थे तो वो पतरस ने उनको निमंत्रण दिया कि आज आओ, हमारे घर पर आओ और खाना खाते हैं. So Jesus accepted the invitation and went along with James and John also, along with the house of Simon Peter and his brother Andrew. और पतरस का निमंत्रण यीशु मसीह ने स्वीकार किया, और वो याकूब और यूहन्ना के साथ और अंद्रियास के साथ उसके घर पर पहुंचे. Now Peter was married and his mother-in-law was staying in his house, maybe because she had fever, not well. और पतरस जो था वो विवाहित था, और जो पतरस की जो सास थी वो उसके घर पर थी, शायद इसलिए क्योंकि वो बीमार थी, बुखार था उसको. And then they told Jesus, my mother-in-law is not well, she's running fever and not getting better. और पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि मेरी जो सास है उनकी तबीयत खराब है, उनको बुखार है. So Jesus went to her and she touched her and lifted her hands and prayed for her. और यीशु मसीह उनके सास जो थे उनके पास गए, उन्होंने उनका हाथ छुआ और उनको उठाया, और वो चंगी हो गई. And the fever left her. और जो बुखार था उनके शरीर को छोड़कर चला गया. See how good and kind it be, as we sang in that song, I must tell Jesus all of my troubles. और वो कितना अच्छा एक जो घटना है, एक घटी है, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बड़ा कार्य किया है. So even when we have sickness in our lives, we can tell it to the Lord, and the will of the Lord is that we should not lie down and be sick with fever, but God wants to heal us.
और जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है या हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और उसे पुकारना है, वो हमें ठीक करेंगे। It is not the will of God that we should be always sick. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम हमेशा बीमार रहें। So sometimes God allows sicknesses to correct us and to discipline us, but God wants us to be healthy. और परमेश्वर कभी-कभी हमें सुधारने के लिए, हमें हमारे जीवन में अनुशासन लाने के लिए, हमें बीमार होने के लिए अनुमति देते हैं। So in everything, by prayer and by specific request, we can ask God and He will help us. और हम छोटे से ऐसे प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। And He is very interested in every detail of our life, even though we may not be big and important. और हमारे जीवन की हर एक छोटी बातों में भी परमेश्वर का बहुत दिलचस्पी है, चाहे वो बहुत बड़ी बात भी ना क्यों ना हो, पर परमेश्वर को अच्छा लगता है। And Jesus, he said, before that, it seems he was in the synagogue, but Jesus is never busy to hear our prayers. सॉरी ब्रदर। Jesus is never busy to hear our prayers. परमेश्वर बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। And then when he came and he touched Peter's mother-in-law. और यीशु मसीह ने आए उस पतरस के घर पर, उसकी श्वास को छुआ। So whenever we come to the Lord with any problem, we come with a humble heart and tell our problems to the Lord. Not only our problems, but problems of our family members. The Lord is interested in our family. जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं हमारी तकलीफों को लेकर, समस्याओं को लेकर, ना कि सिर्फ हमारे परिवार की, तो परमेश्वर हमें छूते हैं, उसको चंगा करते हैं। So we can always ask the Lord, Lord, touch my physical body and heal from any pain or any fever. और परमेश्वर को, यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जब भी कोई हमारे शरीर में कहीं से भी दर्द है या बुखार है, तबीयत खराब है, तो हमें परमेश्वर को कहना चाहिए कि आइए मुझे छूइए प्रभु। And also for our relatives. और हमें हमारे रिश्तेदारों के लिए भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। And the Lord will heal them. और परमेश्वर उन्हें जरूर चंगाई देंगे। That's why Peter and John, Peter spoke to Jesus and said, yes, Lord, please, my mother-in-law is not well, and you pray for her healer. और इसलिए पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि मेरी जो सास है वो बीमार है और आप आइए और उसको चंगा कर दीजिए। Jesus can heal anything. और परमेश्वर किसी को भी चंगाई दे सकते हैं। So we must have faith in God that God is almighty. और हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। And He heals us from our sicknesses. He also takes away all our sins and bad habits. और वो हमारी बीमारियों को भी चंगा दे सकते हैं और हमारी जो गंदी आदतें और पाप है उससे भी हमें We can pray for our family members also. Lord, please save them. Let them come close to you. और हमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो परिवार के लोग हैं आपके करीब आए और बचाए लिए जाएं। And because Peter had a faith, his mother-in-law got well. और क्योंकि पतरस को विश्वास था, इसलिए उसकी सास जो थी she got healed. और वो उस बीमारी से, बुखार से ठीक हो गई। That is why whenever we pray, at least one member in the family should have faith. और जब भी हम प्रार्थना करते हैं परिवार में से एक ना एक सदस्य को तो विश्वास होना ही चाहिए। We should have faith in the living God and His power. पर जीवित परमेश्वर पर उसकी सामर्थ पर विश्वास होना चाहिए। We do not know if Peter's mother-in-law had much faith, but Peter had faith that Jesus can heal her. हम नहीं जानते कि पतरस की जो सास थी उसको इतना विश्वास था कि नहीं, पर पतरस को पूरा विश्वास था। So we also can believe that God will also heal our family members and heal them from sin and save them from sin. और हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्यों को परमेश्वर हर एक बीमारी से, यदि वो विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वास करेंगे और सारे पापों से छूट जाएंगे। The wonderful thing that Peter's mother-in-law got healed immediately. और बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पर ये थी कि जो पतरस की जो सास थी वो तुरंत ही ठीक हो गई। So with this faith of Peter, his mother-in-law got healed. क्योंकि पतरस के विश्वास के द्वारा उसकी जो सास थी वो ठीक की गई। So sometimes in our lives also, when we come into problems, we must have faith in Jesus. और बहुत सारी बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है।
Once when I was in college और जब भी मैं कॉलेज में था and I was in the laboratory, और मैं लेबोरेटरी में था, one of my colleagues, a young doctor, he suddenly came to the laboratory and then he had severe kidney stone pain and he was crying out very, very severe pain. और मेरे साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था, उसको बहुत ही तेज दर्द हुआ किडनी की जगह पे। And because all the other people were ladies, I took him up to the room and made him lie down. और क्योंकि वहां पर जो काम कर रही थी वो सब महिलाएं थी, इसलिए मैंने उनको उठाया और कहीं जगह पर जाके लेटाया। And at that time I didn't have any tablets or any injection, nothing with me. और उस समय पर मेरे पास कोई दवाइयां नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था। So I don't know what to do at that time. He was having severe pain. और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, उस वक्त उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। But I was a Christian, I was a believer in Christ. So then the thought came to my mind, why don't you pray for him? और उस वक्त मैं विश्वासी था और मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसके लिए एक प्रार्थना करूं। So then when I said, okay, I will pray. I asked him, can I pray for you for your pain? और फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे इस दर्द के लिए प्रार्थना करूं? Then he said, do anything. और उन्होंने कहा कि कुछ भी करो। So I just prayed a simple prayer. I was not having much faith. I said, Lord Jesus, please touch this friend of mine and my colleague and heal him from this severe pain. और मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करी, जब जितना विश्वास के साथ थोड़ा नहीं करी थी, पर बस मैंने छोटी सी प्रार्थना करी कि ये जो बहुत तेज जो दर्द हो रहा है, इससे छुटकारा दीजिए प्रभु। So I prayed just believing that God would hear me. I had nothing else to do. So I said, anyway, this problem, I can only pray to the Lord. और उस वक्त मेरे को ऐसा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। उस वक्त करने के लिए तो और कुछ भी नहीं था, इसलिए प्रार्थना करी और कहा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। So I waited for some time and after that, I think he went to sleep and then I asked him how he was. He said that he was feeling better. और मैं थोड़ी समय के लिए रुका और वो फिर सोने चला गया। मैंने उससे पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो उसने बोला पहले से बेहतर है। And then I went down. फिर मैं नीचे आ गया। The next day, some of our lady doctors were saying that you prayed for him and he got better. और कोई एक महिला डॉक्टर थी, उसने मुझसे कहा कि तुमने उनके लिए प्रार्थना करी और वो बेहतर हो गए हैं। So I forgot about it, but then when I asked him, he said, when you prayed, the pain left immediately, just faster than any injection. और मैं इस बात को थोड़ा भूल चुका था, पर उसने मुझे बताया कि तुम जब प्रार्थना कर रहे थे तो तुरंत ही मेरा जो दर्द था वो चला गया। I had very little faith, but with that very little faith, God honored that faith, and that my friend, my person who was working with me, that doctor, he got better. और मेरे पास उस वक्त बहुत ही छोटा सा विश्वास था, पर उस छोटे से विश्वास ने परमेश्वर ने उसका आदर किया और उस व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना करी थी वो सुन ली। So the Lord taught me that we must have a simple childlike faith, trust him that he can do everything according to his will. और इस बात से परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हर बात के लिए मुझे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। So we must always have faith in our living God because Jesus is alive today. और हमें जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो आज तक भी जीवित है। And then the wonderful thing about that Peter's mother-in-law was that after she got well, she stood up and started serving food and looking after Jesus. और बहुत अच्छी बात ये थी पतरस की सास में कि जैसे ही वो ठीक हो गई, तुरंत ही वो परमेश्वर की यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। She didn't say, I must take rest. No, she immediately started cooking the food, serving him, putting the plates, trying to help as much as possible. और उसने ये नहीं कहा कि थोड़ा और आराम की मुझे आवश्यकता है, पर नहीं, वो खाना बनाने लगी और सबको परोसने लगी। So when God does something good for us, we must always try to serve him with gratefulness. और जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, हमें बहुत ही धन्यवादी रूप से परमेश्वर के पास आना है। So that is the way we honor God and say, thank you. Now, Lord, you have done so much for me. I'm going to serve you with all my strength. फिर इस प्रकार हम परमेश्वर का आदर करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए जिएंगे। We do not know the name of Peter's mother-in-law, but she was maybe a widow. But God cares even for widows.
और हम नहीं जानते कि यीशु पतरस की सास का नाम क्या है। हो सकता है कि वो शायद वो विधवा हो, पर परमेश्वर विधवाओं का भी आदर करते हैं। Because she was helpless, she had come to stay in Peter's house. और क्योंकि वो असहाय थी, इसलिए पतरस के घर में रह रही थी। And the Lord Jesus cares for everybody, all those who are weak, whether they are widows or they are unmarried. God cares for us. और परमेश्वर हर एक का ख्याल रखते हैं, चाहे वो विधवाएं हो, चाहे अविवाहित हो, सभी का ख्याल रखते हैं। So this is what the other unknown person that we see is in Mark chapter 5. और ये है और दूसरी एक महिला है जो मरकुस 5वें अध्याय में हम देखते हैं उसको। She had a lot of bleeding problem from her periods. हाँ, उसको लहू बहने की दिक्कत थी। So we see, we can read in Hindi from about chapter 5 verse 25 to 34. Can you sister read from 25 to 34? Yes, sir. 25 से 34 वचन तक पढ़ेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझसे असामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे कहा, उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। So we see the story of another unknown lady who was a very ordinary woman. She got healed from her sickness. और हम देखते हैं बाइबल में ये एक ऐसी स्त्री है जिसको कोई नहीं जानता है, नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बहुत साधारण सी स्त्री है। वो अपने जो इस बड़ी सी बीमारी से चंगी हो जाती है। She had bleeding for 12 years. और उसको 12 साल से लहू बह रहा था। Just think how much she suffered. और सोचिए कि कितना वो सहन कर रही थी इस चीजों को। When the people, children, ladies get periods for 3-4 days, then they feel very uncomfortable. और जब 3-4 दिन के लिए जब महिलाओं को पीरियड्स आता है तो वो कितना खराब महसूस करती है। But see, look at this lady. For 12 years, she's on continuous bleeding and she's feeling so weak. और आप देखिए इस महिला को जो 12 साल से इसी जो तकलीफ में जी रही थी वो। And then, but she heard that there is a person called Jesus who loves people and who heals people. और उसने सुना कि जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो उसके वहां से गुजर रहे हैं, जो प्रेम रखते हैं और सभी को चंगाई देते हैं। And she had spent so much money in these 12 years, going to so many doctors, but she never got better. She became only worse. और बहुत सारा जो पैसा था उसने पूरा गवा दिया था, बहुत सारा इलाज कराया था, पर कोई भी उसको चंगाई नहीं दे पाया। But at last she heard there was some Jesus, but he was always with the crowd and Jesus could not meet him at all. और बहुत सारी भीड़ वहां पर थी, इसलिए वहां यीशु मसीह से मिल नहीं पा रही थी। So normally among the Jews, ladies cannot meet and touch men. और यहूदियों में ऐसा है कि जैसे जो महिलाएं हैं वो पुरुष को छू नहीं सकती है। They cannot come in front of men, other people will push her away. और वो किसी भी पुरुष के सामने नहीं आ सकती है, लोग जो दूसरे लोग हैं उसको धक्का दे देते हैं। And especially when you are having bleeding, they are considered to be unclean among Jews. और यहूदियों में ऐसा है कि यदि आपको लहू बह रहा है तब तो आप बिल्कुल भी किसी भी पुरुष के आगे नहीं जा सकते, आप अशुद्ध हैं उनकी नजर में।
because the Jews believe that if you touch a woman when she is bleeding, you will also become unclean. और क्योंकि यहूदियों में ऐसा माना जाता है कि यदि लहू बह रहा है उस वक्त, तो आप अशुद्ध है, गंदे हैं उस वक्त। So many Jews, even in the land of Israel, sometimes when they see a woman coming, they'll go to the other side of the road. और जब भी कभी कोई यहूदी व्यक्ति ऐसा देखता था कि महिला आ रही है उस तरफ से, तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। But here this lady was saying, what shall I do? So she had a plan. She said, I will go quietly behind the Lord and just touch his cloth of his dress, and then I will be healed. और उसने उस वक्त पर उस महिला जो स्त्री थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक योजना बनाई कि मैं चुपचाप जाऊंगी और उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। So quietly in hiding, she just went quietly and just touched his outer garment. और वो छुपती छुपाती हुई अपने आप को चुपचाप वहां पर गई और उसके वस्त्र को छू लिया। And she said that, she thought and said, yes, I will get well. और जैसे ही वो पकड़ी गई तो कहती है कि हाँ, मैं चंगी हो गई हूँ। No, she thought that definitely if I touch Jesus, I will get well. उसने अपने मन में ऐसा सोचा कि वो अपने मन में ऐसा सोच लिया कि हाँ, वो इस बीमारी से शुद्ध हो गई, चंगी हो गई। Because she knew that Jesus was the Son of God and he loved her and he will have the power to heal her. और वो जानती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उससे प्रेम रखता है और वो ही उसको चंगाई दे सकता है। And it says in verse 29 that immediately as soon as she touched her, suddenly the bleeding stopped. और यहाँ पर लिखा है वचन में कि जैसे ही उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया। And all discomfort and trouble and pain went away. और जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो दर्द जो था उसको, वो तुरंत ही उसके जीवन में से चला गया। And immediately Jesus said, somebody has touched me. और यीशु मसीह को तुरंत एक ऐसा लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। Because the power of God that was on in his life, suddenly it came out of his body into this the woman's body. और परमेश्वर की जो सामर्थ थी, वो यीशु मसीह की जो सामर्थ थी, वो उसके अंदर से निकली थी और उस स्त्री में गई थी। And then he was looking at the crowd. He knew that it was a woman, but he told the crowd, the people, the disciples around, who touched me? और वो भीड़ में इधर उधर देखने लगे यीशु मसीह। वो जानते थे कि किसी स्त्री ने उनको छुआ है, पर वो फिर भी पूछते हैं चेलों से कि किसने मुझे छुआ। And the disciples stand and told him, Mary, such a big crowd is around you. They are walking before and back of you. How can you say who touched you? और ये यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि आप पे तो भीड़ गिरी पड़ रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको किसने छुआ। And then Jesus saw a woman was behind him. और फिर यीशु मसीह ने एक महिला स्त्री को देखा जो उनके पीछे खड़ी हुई थी। And then this woman came and fell down at his feet because she was so frightened that she had done that. और वो स्त्री यीशु मसीह के चरणों पर गिर गई और क्योंकि वो बहुत डर रही थी। And she said, told everybody the truth. और उसने सभी को फिर सच्चाई बता दी। Nobody knew. The people must have got angry. The disciples must have got angry at her but when she told the truth that she had touched the Lord when she was bleeding. और जो बाकी जो लोग थे, ये जो चेले थे, वो गुस्सा कर रहे थे, पर उसने जैसे ही कहा कि जैसे उसने छुआ वो चंगी हो गई है। Because she told the truth and she did not hide anything, the Lord told her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. और क्योंकि उसने सब सच सच बताया, उसने किसी भी बात को छुपाया नहीं, उसके कारण परमेश्वर उसे कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। So the Lord is very compassionate. He hears the cry of our heart. और यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, बहुत ही दयालु है, करुणामय है, उसने उसकी हृदय की आवाज को सुना। On Sunday we heard the message that the Lord hears the cry of his people. और रविवार को हमने एक वचन सुना था जिसमें कहा गया था कि परमेश्वर हृदय की आवाज को सुनते हैं। In our sufferings, this Peter and his mother-in-law must have cried out to God, and the Lord heard and healed her. और जो वो चीजें सह रहे थे, उनमें उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, पतरस की सास और इस महिला ने भी, तो परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना।
And this poor other lady with the bleeding, she must be crying out from her heart, Lord, when will I get better? When will I get better? And the Lord one day came and she saw the Lord and touched him and she got healed. और इस जो ये स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसने भी अपने हृदय से पुकारा कि परमेश्वर मैं कब ठीक होऊंगी, और उसके विश्वास के द्वारा वो ठीक हो गई, चंगी हो गई। So now in the body we have lot of sicknesses and that causes lot of discomfort. और एक शरीर में होने के लिए हम बहुत सारी बीमारियों का सामना हमने करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हमें सहन करनी पड़ती हैं। Definitely the Lord loves us and wants to heal us. और निश्चित रूप से परमेश्वर हमें छूना चाहते हैं, हमें चंगाई देना चाहते हैं। But there is a greater thing in our spirit, our spiritual lives. There is sin. When sin is in our life, all the peace we find we become spiritually unhealthy. और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर जो है वो पाप होता है, उसके कारण परमेश्वर जो है हमारे जीवन में नहीं कर पाते चंगाई, और इसलिए हम परमेश्वर को पुकार नहीं पाते। So when we become spiritually unhealthy because of sin, और हम आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं पाप की वजह से। and this sin is different types of sin: sin of anxiety, sins of anger, sins of so many, love of money, and hatred that comes into our heart. और ये अलग अलग तरीके के पाप हो सकते हैं, चिंता हो सकती है, पैसों का प्रेम हो सकता है, बहुत सारा गुस्सा और घृणा हमारे हृदय में हो सकती है। But when we cry out to the Lord can bring us peace and joy. और यदि हम परमेश्वर को जब पुकारते हैं तो परमेश्वर का शांति और आनंद हमारे जीवन में आता है। And also love and all the hatred will go out of our heart. और परमेश्वर का प्रेम आता है जिससे हमारे जो हृदय में जो कड़वाहट है वो दूर हो जाती है। The Lord loves to hear us cry to Him. और परमेश्वर को अगर यदि पुकारते हैं तो वो सुनता है। We say, Lord, please help me. Lord, I need you. I need you. और हमें परमेश्वर को पुकारना है कि हमें हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। The Lord Jesus definitely hears our cry and He will heal us and He will deliver us from our sin and our sicknesses. और निश्चित रूप से परमेश्वर मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमें छुटकारा देंगे और सभी बातों से चंगाई देंगे। If sickness is hindering our walk with the Lord or our service for the Lord definitely wants to heal us. और यदि हमारी कोई भी बीमारी परमेश्वर के काम में कोई बाधा डाल रही है तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें चंगाई देंगे। The most important is that God hates sin. He doesn't want us to sin at all. बस ये बात है कि यीशु मसीह जो है वो पाप से घृणा करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। And because sin will separate us from Him. और एक पाप ही है जो हमें उससे अलग कर सकता है। Sickness will not separate us from Jesus. और जो बीमारी है वो यीशु मसीह से हमें दूर नहीं कर सकती। But the Lord loves us. He wants to heal us from our sicknesses also. और परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और हमारी चंगाई, हमें इस बीमारी को भी चंगा कर देंगे। So that we can serve Him. ताकि हम उसकी सेवा टहल कर सकें। If we are always sick, how can we serve Him? यदि हम हमेशा बीमार ही रहेंगे तो हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? You know how uncomfortable it is when we have fever. और कितना बुरा लगता है जब हम आरामदायक महसूस नहीं करते जब हमें बुखार होता है। Or we are bleeding or any such thing. We cannot travel, cannot go to work. और यदि हमें ऐसा खून बह रहा है तो हम नहीं कहीं जा सकते हैं और बहुत ही घर में बुरा लगता है। But more serious is when we fall into sin, then we lose fellowship with God and we lose fellowship with people who walk with the Lord. और यदि हम पाप करते हैं तो वो बात है जो परमेश्वर से हमें दूर करती है और परमेश्वर के साथ नहीं चलने देती। So that is why when we cry out to God for help, Lord, please help me. I'm getting anxious, I'm grumbling, murmuring, complaining. Lord, please save me from this. और हमें परमेश्वर को पुकारना है कि परमेश्वर हमें शुद्ध कीजिए, हमें इस पापों से छुड़ाइए। हम चिंता करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बहुत सारी बातों के लिए हम इधर-उधर भरोसा रखते हैं। So when we confess our sin before God, God will fill us with the Holy Spirit and give us strength so that in the situations and problems of life we will not sin. और फिर यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर जो है हमें हर एक बातों से छुटकारा देंगे। Oh dear sisters, we must always come to Jesus at any time. और हम कभी भी आ सकते हैं बहनों यीशु मसीह के पास। And tell all our heart's problems to Him. और हमारे हृदय की सारी जो समस्याएं हैं उसके सामने हम कह सकते हैं।
it says in Philippians chapter 4, in everything by prayer and supplication, let our requests be made known to God. और फिलिपियों के 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि सब बातों में We will read that verse. हाँ, Philippians chapter 4, फिलिपियों 4 verse 6. 6वां वचन, किसी भी Be बात की anxious for nothing. Yeah, read it. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Verse 7 says 7 also. 7वां वचन भी, तब परमेश्वर की शांति और समझ, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। Oh, and then God wants us to be at peace with Him. Then that peace will guard our hearts, and we will be at rest. और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर जो हृदय में शांति आएगी और वो शांति से हम जी पाएंगे। In all our problems in life, we know that God will do something about that problem. और किसी भी समस्या में हमें यही कहना है कि परमेश्वर इस समस्या में भी मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। God will solve every problem. परमेश्वर हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। And we know that then we'll have peace. God will take care. और फिर हमारे जीवन में शांति आएगी कि परमेश्वर ख्याल रखेंगे। So we can trust in Jesus all the time because the same yesterday, today and forever. और हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना है क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। So my dear sisters, we pray that we'll always trust Him and go to Jesus. और हमें बहनों प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर के पास हमें जाना है। Never go back. कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। In all your problems, personal problems, family problems, work problems, always go to the Lord. कोई भी समस्या हो, घर के परिवार की समस्या हो, कोई बाहर जो काम कर रहे हैं उसकी समस्या हो, परमेश्वर के पास आइए। And let us cry to Him. और परमेश्वर को पुकारिए। And then He will help us. और फिर वो हमारी सहायता करेंगे। He will satisfy us. और वो हमें संतुष्ट करेंगे। And we will say, definitely, my God is real, my God loves me, He cares for me, He's freed me from the power of sin and all evil. और फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमारे समीप है और हर एक शैतान के बंधन से वो हमें छुड़ा लेंगे। Amen. So do we have opportunity for sisters also to share, and especially what we heard on Sunday about crying out to God for help. He always loves us and He will help the people who cry out to Him. और हमारे पास एक मौका होगा कि हम वचनों से कुछ बांट सकें, खासकर तौर से जो हमने रविवार को सीखा था परमेश्वर को पुकारने के लिए, तो उसमें हम बांट सकते हैं परमेश्वर की। So anybody can start sharing something what God has helped them, and in your personal lives, what this is for everybody to share one by one. Anybody can start. कोई भी शुरू कर सकता है, कुछ भी प्रभु है आपके जीवन में क्या बात किया है। किसी को है 12-15 मिनट है, बाकी 12-13 मिनट। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। कुछ बातें जो वचनों के द्वारा सीखने मिला वो मैं बताना चाहती हूँ। संडे को ब्रदर कह रहे थे कि परमेश्वर भले ही उनका मुंह हमारे तरफ नहीं रहता है तो भी हमारे जीवन की सारी बातें वो जानते हैं। मतलब उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं हो, सबको जानते हैं। सिर्फ वो हमारे मन की हम्बल मतलब नम्र होकर हमारे सच्चे मन की पुकार को सुनना चाहते हैं, ताकि हमारे जो विश्वास के साथ परमेश्वर पुकार को सुनना चाहते हैं। जब पुकार को सुनते हैं तभी वो हमारी तरफ नजर फेर, हम जब उनकी ओर मुड़ते हैं तो वो हमारी ओर मुड़ते हैं और हम उनकी नजर जो है हमेशा फिर हमारे ऊपर बनी रहती है।
तो आज भी वही सीखने मिला कि जो ये जो दो महिलाओं के विषय में अभी भी जो ब्रदर ने वचन बांटी, उसमें भी परमेश्वर ने उनकी हृदय की पुकार को सुनी, और परमेश्वर बहुत ही ज्यादा सर्वशक्तिमान है। अगर हम सच्चे हृदय से, ईमानदारी से परमेश्वर को पुकारेंगे, नम्र होकर, तो हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई बीमारी हो या कोई समस्या हो या तो फिर कोई चिंता में हम लगे हो, जिससे हमें उस चिंता से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई भी ऐसे कोई परिस्थिति सामने आ जाती है जिससे जो हमारे दिमाग से निकलता है, कैसे इसका सामना किया जाए, ये सब कुछ आता है। परंतु अगर हम नम्र होकर सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर को पुकारे मन से, भले ही कोई देखे या ना देखे, हमारा मन जो है वो परमेश्वर की ओर रहेगा। इवन ब्रदर ने ये भी कहा था कि परमेश्वर मन की तैयारी को देखते हैं। इज़राइल जन भले ही तैयार नहीं थे, वो शुद्ध नहीं थे, परंतु वो अपने मन को तैयार कर रहे थे। मतलब अपने मन में वो तैयारी थी कि हाँ, परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध करना है। उस तैयारी को भी परमेश्वर देखते हैं, उस सच्चाई को देखते हैं मन की। बाहर हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हमारे अंदरूनी मन की आवाज को परमेश्वर देखते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। यही परमेश्वर ने इन दिनों परमेश्वर ने बातें की, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपने जीवन से कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और कुछ ही दिनों पहले की बात है, और मैं ऐसा थोड़ा सा परेशान हो गई थी और बहुत टेंशन ले रही थी, और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और मैं बैठी हुई थी और मैंने बोला प्रभु को ही कि प्रभु अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करके। और मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, मतलब क्योंकि किसी किसी बातों का हो जाता है। और तो मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर क्या हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा करके। और इससे अच्छा तो कि ऐसा, मतलब मैंने कुछ ऐसा बोला, परमेश्वर को प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया। कैसे दिया वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं लूका 12 पढ़ रही थी। लूका 12 में चेतावनी और प्रोत्साहन ऐसा शीर्षक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता मत करो। और मैं ये जब पढ़ रही थी लूका 12 पूरा, आप एक बार अगर आप चाहें तो प्लीज पढ़िएगा, आपको भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। और क्योंकि बहुत सारी टेंशन हमारे जीवन में आती है, तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और मैं यही सोच रही थी कि मैं छुटकारा पा लूं, कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए। तो फिर मैंने ऐसा भी मेरे मन में प्रभु ने डाला, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी बात मेरे मन में आती ही नहीं थी। परमेश्वर ने बोला कि मसीह जीवन आसान नहीं है। मैंने बोला हाँ प्रभु, हमने यही सीखा है। और ब्रदर ने भी उस दिन बोला था कि ऐसा इंतजार मत करो कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब प्रभु के लिए जीना है हमें। और ब्रदर जैक भी हमेशा कहते हैं कि मसीह जीवन आसान नहीं है, अगर नहीं चलना है तो पीछे मुड़ जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं प्रभु, नहीं, पीछे तो नहीं मुड़ना है। परमेश्वर, मुझे प्रभु आपके इशारों, मतलब जैसा प्रभु बोलते हैं वैसा ही मुझे चलना है। और फिर मैंने उससे प्रोत्साहन मिला, और एक गीत में सुन रही थी, अपने ग्रुप पे ही डला हुआ है वो, काउंट योर ब्लेसिंग नेम देम वन बाय वन। तो मैं वो सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो गीत। और एक लाइन उसमें आती है कि अगर किसी दूसरे का पैसा या फिर किसी दूसरे की भूमि देखकर आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, तो आप अपने पास ऐसी आशीषों को देखें जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते थे। वो बहुत अच्छा गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत, और जब से मैंने सुना है मैं उसको रोज सुन रही हूँ, इससे मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे वैसा दिया है, परमेश्वर की शांति है मेरे पास, परमेश्वर का आनंद है, और परमेश्वर की खुशी है, और शांति, आनंद, प्रेम है मेरे पास। तो परमेश्वर ने मुझे जो दिया है ना, वो उनके पास नहीं है जो आराम से जी रहे हैं। परमेश्वर की शांति नहीं है, उनको थोड़ा टेंशन है, उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जाती हूँ बाहर, मैं देखती हूँ लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, तकलीफ में है। पर हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास बहुत बड़ी आशा है, तो हमें उनको भी वो देना है, और हमें निरुत्साहित नहीं होना है। इसलिए लूका 12 आप जरूर पढ़िएगा, और उससे आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आमीन। आमीन। Jennifer, want to say anything?
I praise and thank God for today's message. I'm really encouraged by the life of the woman who was bleeding for 12 years, and always inspires me, her testimony. I remember this around 3 to 4 years ago, that when my daughter was going through some health problem, and we were doing all the tests and everything, and the doctors didn't know what was wrong with her. So finally, when after the test was done, they said that there is some scan to be done and everything. And I remember that we had to go to the specialist, and one of this scripture, the lady who was bleeding for 12 years, because as I was speaking to one of her believers, and we were praying as a family, and this passage was read, and the brother read this passage, and he was explaining like how the lady was suffering for so many years, and even though she had everything in the world, she went to many doctors and everything, all the money she spent. And second thing, I see that she had the determination, and she believed that only Jesus could heal her, that one touch could heal her completely. And even though it was very crowded, so I was just thinking that it is so crowded, she went through the crowd, she struggled all the way, and she touched the hem of the garment of Jesus. And how this relates to my life is that I could have anything in the world. What the Lord taught me to this passage is that maybe we can have money, we can have everything, all the comfort around, but it is only Jesus who can heal my daughter. There is only one touch required from the Lord. So maybe we can spend a lot of money, or we can go to many doctors, but even they cannot have a solution. But it is Jesus who is a true healer. When we go to him, he will surely hear our prayers. He sees our cry. He sees the difficulty we go through, and he will never leave us. Even in that moment, I praise Jesus and I thank Jesus that he comforted me through his word, and to the brothers and sisters, through the scriptures. He inspired me to carry on. And with faith, that time I remember I said, Lord, I made a prayer. I said, Lord, nothing in this world is going to heal my daughter, but it is only you, Jesus, who can heal my daughter. And I'm going to see that, Lord, that healing is going to come to my daughter Samara, and she is going to be a living testimony for others. And I will surely praise and thank you for everything that you have done for me. So all that I want to share, sisters, is that we can have everything in the world, but it is only Jesus. He is the true person. He will never change. He never changes, and he is the same yesterday, today, and forever. And I praise and thank God for him. Hallelujah. और कोई है तो गवाही देने के लिए प्रभु हमारा जीवन में क्या काम कर रहा है, क्या विश्वास कर रहा है? एक गाना हम गाते हैं, कीप योर आइज ऑन जीसस थ्रू ऑल द ट्रबल्स दैट गो। हमारे जीवन में इतना सारा मुसीबतें भी आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन हमको यीशु मसीह के ऊपर हमारा आंख रखना चाहिए, हमारा मन रखना चाहिए। हमारा मन का विचार, प्रभु आप मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी टुकराऊंगा नहीं। ये प्रॉब्लम आया है आपकी महिमा के लिए, प्रभु इससे ठीक करो, मेरा जीवन भी ठीक करो। और ये समस्या से पीटर की सांस इतना उत्सुकता से आई प्रभु के पीछे करने के लिए, वो भी उनका सेवा करने। हाँ, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मैं उनके लिए जीऊंगा।
हर छोटी चीज भी, खाना पकाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं सेवा करूंगा, जैसे भी दूसरे भी, कोई भी। तो प्रभु हम हमारा भलाई क्यों करते हैं? ताकि हम उनका पीछा करें। We can follow the Lord and do His will for the rest of our life every day. Lord, I want to do it for you. I want to pray for others. मैं I've gone through so many problems, मैं इतना सारा तकलीफ से गुजर गया, लेकिन बाकी हमारा भाई बहन भी ऐसा जाते हैं, प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपने मेरे लिए बहुत चीज किया है, प्रभु मेरे पाप से भी छुड़ाया, मेरा फैमिली को भी छुड़ाओ प्रभु जी, आप जरूर करेंगे। ये हमारा विश्वास, हमारा मम्मी को छुड़ाओ, सब शैतान की ताकत से वो छोड़ सकते हैं। शैतान की गॉड्स पावर इज ग्रेटर देन द डेविल्स पावर। हम जब प्रार्थना करेंगे, ये सब जो बुरी आदतें हमारे बच्चों में है या अपना माँ बाप में है या भाई बहन में है, वो तो उनको छुटकारा देंगे यीशु के नाम से। यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, ही इज द ग्रेटेस्ट नेम। तो हम ऊपर यीशु के नाम, कोई भी नाम अगर भूल गया तो यीशु का नाम कभी भूलना नहीं। हमारी समस्या में प्रभु आप ही हमारे साथ है, मैं आप ही हमारा चारा है। वी कैन ऑलवेज ट्रस्ट द लॉर्ड। कुछ बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, बाइबल नॉलेज का जरूरत नहीं है। ये लोग दे वर ऑर्डिनरी पीपल। ये 2 सिस्टर्स, पीटर्स मदर इन लॉ, वो दूसरी औरत भी जिसका खून बह रही थी, दे केम, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और प्रभु ने उनको उनका समस्या को बिल्कुल सॉल्व किया। प्रभु हमारा समस्या सॉल्व करने के लिए आया है, हमको निराशा में रखने के लिए प्रभु नहीं आया है, हमको उठाने के लिए आया, आनंद और शांति देने के लिए आया, और प्रेम हमारा जीवन में हमेशा रहेंगे। ये पवित्र आत्मा के बल से प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भरेंगे। तो लेट अस प्रे प्रभु सिस्टर्स। और उसके बाद, उसके पहले ये अनाउंसमेंट है कि हम 25 तारीख को शनिवार का दिन पूरा दिन मीटिंग हो रहा है, 10 o'clock to 5 बजे।